to start with index number. Yes, after completion of correlation, this is the last chapter of statistics. Yes, this is the last chapter of statistics. Yes, what is that? It is called index number. What is index number? ये index number क्या होता है? Confusion है ना? सर ये index number क्या होता है? Index number एक we say that it is a type of statistical tool. ये क्या है? ये एक statistical tool है. कैसा statistical tool? It is that tool which give us what? Which tells us what the amount, what the percentage change is coming between two commodities, quantity और price और value. मतलब किसी commodity की price में कितना change आया, उसकी value में कितना change आया, उसके quantity में कितना change आया, we call it as index number. So what is the definition? Definition is, it is a statistical tool designed to show changes in variables. ये क्या है? ये एक statistical tool है जिसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो हमें बताएगा changes in the variables with respect to time and geographical location. और भी बहुत सारे आपके characteristics हो सकते हैं. तो बेसिकली हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं प्राइस एंड जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में. व्हाट इज दैट? प्राइस एंड जियोग्राफिकल लोकेशन. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ मैगी, if I am comparing the price of Maggi, so if I am telling you, just tell me what is the price of your Maggi in the year 16-17? Sir, it is 10 rupees. Okay. What is the current price of 21-22 for the one unit of Maggi? So it is 12 rupees. So here we are comparing that we have a difference of 2 rupees. So this is called the index number. But here we are going with the formula for converting into percentage, and we know the actual number of index, right? So index number is what? Index number tells us the how much percentage change is there in the given quantity or in a price or in a value of two or more than two commodities, right? So basically हम जनरली किसके बारे में, जैसे अगर सपोज करो मैं बात करूं सेंसस की, तो सेंसस कब हुआ था? सेंसस हुआ था 2011 में, राइट? और अब जब सेंसस होगा कब होगा? 21-22 वाला सेंसस होगा. तो एट दैट टाइम यहां पर जो कंपैरिजन हो रहा है वही क्या कहलाता है? इंडेक्स नंबर कहलाता है. यहां से हम क्या कर पाएंगे? फाइंड आउट कर पाएंगे कितना पॉपुलेशन में चेंज आया, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज में क्या क्या चेंजेस आए, लिटरेसी कितनी बढ़ी या घटी, पॉपुलेशन बढ़ी या घटी, राइट? तो दीज ऑल आर कॉल्ड इंडेक्स नंबर, राइट? तो वी हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो टू फाइंड इंडेक्स नंबर. हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं इंडेक्स नंबर को फाइंड करने के. ओके, सो नाउ we are going to discuss the features or characteristics of index number. We are going to discuss features and characteristics of index number. So we have index number are specialized average. Index number क्या है? ये specialized average है, like mean, median and mode, right? फिर index number are expressed in percentage. इंडेक्स नंबर को परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं. दैट इज वाई द फॉर्मूला ऑफ इंडेक्स नंबर ऑलवेज गेट मल्टीप्लाई बाय 100. क्यों? क्योंकि हमें इसको परसेंटेज में निकालना होता है. लेकिन हाँ, याद रहे आंसर में परसेंटेज नहीं लगाते, परसेंटेज का साइन को यूज नहीं करते इंडेक्स नंबर में, लेकिन परसेंटेज में वैल्यू को निकालते हैं. ओके, नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर मेजर्स द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द रिलेशन टू टाइम और प्लेस. क्या इंडेक्स नंबर जो है टाइम और प्लेस के कंपैरिजन में क्या करता है? कंपैरिजन करता है और हमें इंडेक्स नंबर फाइंड कैलकुलेट करता है. फॉर एग्जांपल, पेठा फ्रॉम आगरा, हमारे यहाँ का पेठा आगरा, राइट? एज यू ऑल नो दैट वी आर बिलोंग टू आगरा. तो यहाँ पर जो पेठा का जो प्राइस है एंड द प्राइस ऑफ पेठा इन महाराष्ट्र, दोनों में डिफरेंस होगा क्योंकि लोकेशन चेंज हो गई. हमारे यहाँ पे पेठे के लिए फेवरेबल क्लाइमेट है, फेवरेबल लेबर्स है, फेवरेबल रॉ मटेरियल है, बट द सेम इज नॉट देयर. So that is why they required laborers from here, or they take the product which is manufactured in Agra to that place. So there is an extra cost of transportation also
engaged in it, so the price becomes high. So the changes of price due to location and time and the price, generally it affects these type of things. For example, we have consumer price index. Consumer price index क्या है? जो हमें बताता है महंगाई बढ़ रही है. जल्दी देखा होगा ना, लोग बताते हैं महंगाई बढ़ रही है. कैसे बढ़ रही है महंगाई? कैसे पता लगाते हो महंगाई बढ़ रही है? वो क्या है? एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो उसने बाउंड्री बना दी, राइट. इस बाउंड्री के ऊपर जब प्राइसेस जा रहे हैं ना, तो क्या है? महंगाई बढ़ रही है, ये शो होता है. तो ये किसकी वजह से हुआ? इंडेक्स नंबर की वजह से. तो इंडेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस क्रिएट करता है हमारे लिए कि हम जान पाएँ कि प्राइस में कितने कितने चेंजेस आए. अगर मैं आपको बोलूँ बेटा ऐसा करो, लिखो. सर क्या लिखें? लिखो पहले हमारे यहाँ 2011 में जो वीट का प्रोडक्शन हुआ था वो 10,000 टन का हुआ था. 2013 में हमारे यहाँ 50,000 टन का हुआ. फिर 2018 में हमारे यहाँ 1 लाख टन का हुआ. इस तरीके से मैंने बता दिया डिफरेंट. अब निकालो इंडेक्स नंबर. कितना चेंज आया बताओ? ये कंफ्यूज सर, कितना चेंज आया नहीं पता. तो इंडेक्स नंबर is that convenient number which tells you the easy way to find what the changes are coming in your price or in your quantity or your comparative values, right? So let us start with that. We have 3 types of index number. First we have price index, second we have quantity index, and third we have value index. Price index represent with P, quantity index represent with Q, and value index represent with V. V for when, right? So here सबसे important बात जो इस चैप्टर के लिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको जरूर पता होनी चाहिए वो है 0 और 1 का कॉन्सेप्ट. 0 और 1 का कॉन्सेप्ट. ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. फॉर एग्जाम्पल मैं सेंसस की बात कर रहा हूं. किसकी बात कर रहा हूं? सेंसस की. अब सेंसस की अगर हम बात करें तो 2011 में जो सेंसस हुआ था और 2021-22 का जो सेंसस होने वाला है, वो अगर मैं दोनों कंपेयर करता हूं तो किससे कंपेयर कर रहा हूं? 2021 वाले को 2011 से कंपेयर करूंगा, तभी तो बताऊंगा प्राइस कितना, वो पॉपुलेशन कितनी बड़ी, पॉपुलेशन कितनी बड़ी इन कंपेयर टू 2011 वाला सेंसस. तो 2011 वाला जो सेंसस है वो मेरा बेस ईयर है और 2021 वाला जो सेंसस है वो मेरा करंट ईयर है, राइट. तो 0 का मतलब बेस ईयर, 1 का मतलब करंट ईयर. दोबारा बोल रहा हूं, 2021 में जो सेंसस होना था वो और 2011 में सेंसस हुआ था वो, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो अगर 2021 में हम बोलेंगे कि 2021-22 वाला जो सेंसस है जो अब होने वाला है, तो अब क्या होगा कि अगर मैं चेक करूं कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है किसके कंपैरिजन में, 2011 के कंपैरिजन में. अगर मैं अपने आप को 2011 से कंपेयर करता हूं तो 2011 को हम बोलेंगे बेस इंडेक्स, बेस 0, और हमारा 2021-22 1 फॉर द करंट ईयर, ठीक है. लेकिन अगर मैं इसको ऑपोजिट कर दूं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि प्राइस जो हमारी पॉपुलेशन है और हमारा, या फिर हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट और 2011 वाला और 2021 वाला दोनों को कंपेयर करता हूं, ये कहते हुए कि मैं 11 को कंपेयर कर रहा हूं 21 से. तो एट दैट टाइम मेरा जो 21 वाला है वो बेस ईयर हो जाएगा और 11 वाला करंट ईयर हो जाएगा. मतलब जिससे भी कंपेयर करते हैं ना, जिससे भी कंपेयर करोगे वो क्या हो जाएगा? वो आपका बेस ईयर कहलाएगा. क्या कहलाएगा? बेस ईयर. जिससे भी आपको कंपेयर करना है वो कहलाएगा 0 कॉल्ड बेस ईयर, और जिसको भी कर रहे हो वो 1 कॉल्ड करंट ईयर. होप इट इज क्लियर. आप सब लोग देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे लिखा है 0. 0 स्टैंड्स फॉर बेस ईयर एंड 1 स्टैंड फॉर करंट ईयर. 0 का मतलब बेस ईयर है. अगर कहीं पे लिखा हुआ है P0 मतलब बेस ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर. कहीं पे लिखा हुआ है P1 तो प्राइस ऑफ करंट ईयर. कहीं पे लिखा है Q0 तो क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, Q1 क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, राइट. सो यहां पर 0 का मतलब बेस ईयर होता है, 1 का मतलब करंट ईयर होता है. अब देखो बहुत सिंपल सी बात, P01 अगर आपके फॉर्मूले में उसने पूछा कैलकुलेट P01,
P01 कैलकुलेट करना है तो देखो जो 0 लिखा है, जो भी पहले लिखा होगा 01 लिखा है ना, तो 0 को डिनोमिनेटर में रखेंगे और 1 को न्यूमरेटर में रखेंगे। P01 में जो 0 है वो है आपका डिनोमिनेटर और 1 जो है वो क्या है, न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इनटू 100 वी कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, दैट्स व्हाई वी डू इट मल्टीप्लाई। सो 1 on 0, क्या बोले हम बोले 1 on 0। 1 किस पर है, 0 पर। तो हम यहां बोल सकते हैं, मैं लिख के दिखाता हूं, मैं आपको इसको लिख के दिखाता हूं कि हम क्या बोलेंगे, प्राइस ऑफ 1 आर कंपेयर्ड फ्रॉम P1 अपॉन P0 इंटू 100, हमने परसेंटेज वो फॉर्मूला बनाया। तो P01 मीन्स प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर, राइट। इसलिए बेस ईयर डिनोमिनेटर में जाएगा, करंट ईयर ऊपर जाएगा, इसलिए मैं लिखा प्राइस ऑफ 1 आर कंपेयर्ड फ्रॉम 0। मतलब प्राइस जो है करंट ईयर का वो कंपेयर हो रहा है किससे, बेस ईयर से, इसलिए लिखा P01। और अगर P10 होगा तो प्राइस ऑफ बेस ईयर इज कंपेयर टू 1। तो प्राइस ऑफ बेस ईयर कंपेयर कर रहे हो 1 से, तो फॉर्मूला क्या है, P01 का फॉर्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100, P10 का फॉर्मूला P0 अपॉन P1 इंटू 100, वी आर पुटिंग 100 ऑल्सो, राइट। तो यहां पे क्या हुआ, देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर 01 लिखा है तो जो पहले लिखा है, पहले क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है 0, 0 आ जाएगा नीचे, बाद में क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो P1 अपॉन P0 इंटू 100 हो गया। ऐसे ही अगर हम यहां पे बात करें 1 on 0, तो ये क्या हो गया, 1 on 0। 1 किसके ऊपर है, 0 के ऊपर, इसलिए मैंने बोला प्राइस ऑफ 1 आर कंपेयर्ड फ्रॉम 0। 1 को कंपेयर कर रहे हैं 0 से, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि प्राइस ऑफ करंट ईयर कंपेयर हो रहा है बेस ईयर से। कहां पे, P01 में, राइट। और P10 में प्राइस ऑफ बेस ईयर कंपेयर हो रहा है किससे, करंट ईयर से, ठीक है। क्लियर है यहां तक। इसको बोलते हैं 1 on 0, इसको बोलते हैं 0 on 1, 1 on 0 एंड 0 on 1, ठीक है। क्लियर है, ओके। अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर के जो मेथड है कैलकुलेशन के, प्राइस इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के जो मेथड हैं वो कौन कौन से हैं। तो वी हैव 2 मेथड्स टू कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर। फर्स्ट इज सिंपल इंडेक्स नंबर एंड सेकंड इज वेटेज इंडेक्स नंबर। तो सिंपल इंडेक्स नंबर 2 टाइप का होता है, सिंपल एग्रीगेट मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड। क्या, जो हमारा सिंपल इंडेक्स नंबर है वो 2 टाइप का होता है, सिंपल एग्रीगेट मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड। तो सिंपल एग्रीगेट मेथड का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास P01। P01 मतलब क्या, प्राइस ऑफ 1 कंपेयर्ड फ्रॉम 0। तो प्राइस ऑफ 1 कंपेयर हुआ 0 से, तो हमने क्या फॉर्मूला बनाया, सिग्मा। सिग्मा मींस समेशन, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है। अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, पूरा चैप्टर बहुत इजी है, बस अभी हमें सिर्फ फॉर्मूला समझना है, ठीक है। सिमिलरली ये तो हो गया हमारा किसका, ये हो गया सिंपल एग्रीगेट मेथड का। अब हम बात करेंगे सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड। तो P01 यहां पे हमने क्या लिया है, P01 मींस प्राइस ऑफ 1 कंपेयर टू 0, इसलिए हमने यहां पे फॉर्मूला क्या रखा, सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स n। अब इन सबको हम क्या करेंगे, अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन करके सॉल्व करके दिखाऊंगा पूरे प्रॉपर्ली। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आएगा, राइट। अभी यहां तक क्लियर हो गया। अब जैसे वेटेज इंडेक्स नंबर है, उसका है हमारे पास वेटेज एग्रीगेटिव मेथड और वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो हमारे पास ये वाला जो मेथड है वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। जनरली इस क्वेश्चन वाले मेथड से क्वेश्चन पूछता है और मैं भी इसी वाले मेथड से पूछने वाला हूं। तो बी श्योर दैट कि आप अच्छे से इसको अच्छे से नोट कर लो, अपनी कॉपी में नोट्स बना लो,
बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इसके ही सारे नोट्स पूरा अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो सो दैट यू गेट फुल मार्क्स। सो आज हम लोग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड करने के लिए जा रहे हैं। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पर ये समझेंगे कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फॉर 16, 17 टेकिंग 11, 12 एज द बेस ईयर। तो जब साफ क्वेश्चन में दे रखा है 11, 12 एज द बेस ईयर, तो हम लोग इसको ले लेंगे P0 एंड 16, 17 इज फॉर द करंट ईयर, तो वी आर टेकिंग P1। मीन्स जो भी हमारा करंट ईयर होता है उसे हम लोग P1 कहते हैं और जो भी हमारा बेस ईयर होता है उसे हम P0 कहते हैं, राइट। तो अभी हमारा फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला है P01 मीन्स सिंपल एग्रीगेट मेथड से सॉल्व करने का फॉर्मूला है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। एज यूजुअल मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई जो पहले लिखा होता है उसे हम नीचे लिखते हैं, जो बाद में लिखा होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं। मीन्स 0 इज इन द डिनोमिनेटर एंड 1 इज इन द न्यूमरेटर इनटू व्हाट, इनटू 100। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इन आवर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला वी रिक्वायर सिग्मा P1 and sigma P0 means sigma of current year and sigma of base year we required. So here we are doing summation first. सबसे पहले हम समीशन करते हैं। तो देखिए सिग्मा P0 का अगर हम समीशन करेंगे तो कितना आएगा 140, राइट। व्हाट इज दैट 140। नाउ सिग्मा किसे करना है, सिग्मा P1। अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा P1 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिग्मा P1 इक्वल्स टू 185। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल कि सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये, सबसे सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल है क्या, कि वी ऑल डू ओनली द समेशन ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड द समेशन ऑफ प्राइस ऑफ अ current year. Now we have two values, we are going to put the values in our formula. अब हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे। तो here sigma P1 is 185, sigma P0 is 140 into 100. What is that, into 100. Now we have to solve it. अब हम इसको सॉल्व करेंगे 2.14, right answer is 132.14. okay, so what is that, क्या हुआ इसका मतलब हुआ that हम लोग हमेशा, मैंने आपको बताया था इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में दैट कि हम लोग ऑलवेज बेस ईयर को 100 लेट करते हैं। बेस ईयर क्या लेट करते हैं, 100। अब यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट आया, तो वी सी दैट कि 32.14 का इंक्रीमेंट आया। तो हम लिखेंगे प्राइस of 2016-17 are increased by 32.14%। 32.14% के साथ हमारा प्राइस में इंक्रीज आया। मतलब एज कंपेयर टू 11-12 वी गो फॉर द 16-17। हमने देखा कि 11-12 से 16 जब हमने प्राइस निकाले उसमें कितना इंक्रीमेंट आया, 32.14% का इंक्रीमेंट। लेते हैं एक और क्वेश्चन, जिससे कि थोड़ा भी अगर डाउट रह गया तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से ही सॉल्व करेंगे, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से ही सॉल्व करना है। So again we have to do the total of it, but here we have A, B, C, D as a commodity, but here we have milk, banana, butter और bread. We have 4 commodities here. We have milk, banana, butter और bread, right? तो अब यहाँ पे क्या करना है, पहले ही लिखा हुआ है 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट है 18, 1 में और 7 में 20। बनाना 1 डोजन का कॉस्ट है, ये बटर का 1 kg का कॉस्ट है और ब्रेड 400 ग्राम का कॉस्ट है। ठीक है, तो
तो ये पहले से प्री डिटरमाइंड है, आपको पहले से गिवन होगा। बस अब क्या करना है आपको, सिग्मा पहले तो ये पता लगाओ कि P0 क्या होगा और करंट ईयर P1 क्या होगा। तो जो भी हमारा जो पहले लिखा होता है मतलब 2001 और वो 2007, तो हेयर वी हैव P0 एंड दिस इज वी हैव P1। ठीक है, क्लियर है। अब इन सबको हमको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करके कितना आएगा, टोटल कीजिए 62। तो सिग्मा P0 इक्वल्स टू 162। वेरी गुड। एंड फॉर द सेम इज सिग्मा P1 भी निकालना पड़ेगा हमको, कितना आएगा 199। So now the question becomes very simple. We are just simply go and put the value in our formula. How we put the value in our formula? This sigma P1 we have 199 upon sigma P0 is 162 multiplied by 100 as we required for the percentage. So just 0.84. So 122.84 is the correct answer. आप कमेंट करना है तो आप बोलोगे 22.84% is our net increase in the price of commodity. As compared to 2001 के कंपेयर में 2007 में जो प्राइस हुए उससे हमारा कितना इंक्रीमेंट आया, 22.84% का इंक्रीमेंट आया। यू ऑल नोज कि अभी हम लोगों ने कौन सा मैथ कंप्लीट कर लिया था, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अब हम लोग नया मेथड सीखने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। क्योंकि मेथड चेंज है तो फॉर्मूला भी चेंज होगा, है ना। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। द फॉर्मूला इज P01 इक्वल्स टू सिग्मा, पुटिंग आउटसाइड ना, देखो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अब हम कैसे लेंगे, सिग्मा बाहर लिखा हमने एंड वी आर राइटिंग P1 अपॉन P0 इंटू 100 एंड डिवाइड बाय n। सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 डिवाइड बाय n, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हमें सॉल्व करना है। एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। आवर फॉर्मूला इज P01 निकालने का फॉर्मूला है होल में सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 होल में अपॉन में n। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमें एक कॉलम और इंक्रीज करना पड़ेगा। एक कॉलम हम और इंक्रीज कर लेते हैं। वो क्या इंक्रीज कर लिया हमने, P1 अपॉन P0 इंटू 100 वाला कॉलम। ठीक है, P1 अपॉन P0 इंटू 100 वाला कॉलम। तो इसका मतलब क्या है, P1 25 है, 25 अपॉन 20 इंटू 100। मैं शॉर्ट में एक करके दिखा देता हूँ, 25 अपॉन 20 इंटू 100 इक्वल्स टू, निकालिए फटाफट, हेयर ऑल्सो 40 इंटू 30 इंटू 100 इक्वल्स टू, निकालिए 80 अपॉन 60 इंटू 100 एंड हेयर ऑल्सो 40 अपॉन 30 इंटू 100। So we are putting 125 here. Similarly, you have to calculate these also. So we are writing 40 upon 30 into 100. 0 6 0 cut. 25 divided by 20 into 100 we get 125. फिर 40 divided by 30 into 100 we get 133.33. Similarly 80 divided by 60 into 100 we get 133.33.
Similarly 40 divided by 30 into 100 we do 133.33. तो अब क्या करेंगे, इसका समीशन करेंगे, तो सिग्मा P 1 अपॉन P0 इंटू 100 का जो समीशन आएगा वो कितना आएगा, टोटल करते हैं अब इसको, तो आएगा 524.99, जिसको राउंड ऑफ कर देंगे तो आ जाएगा 525. ये हो गई हमारी राउंड ऑफ वैल्यू. ठीक है, नाउ गोइंग टू सिंपली पुट द वैल्यू इन आवर फॉर्मूला. P01 इक्वल्स टू 525 डिवाइडेड बाय कितनी टर्म्स है हमारे पास, 4. तो 525 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो इट इज 131.25. सो हेयर वी से कि कितना इंक्रीज आया प्राइस में, तो हम लिखेंगे नेट इंक्रीज इन प्राइस इज 31.25%. ठीक है, कितना इंक्रीज आया, 31.25% का. आई होप इट इज क्लियर. चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं. राइट, क्लियर है. तो लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व दी अनदर क्वेश्चन ऑल्सो. सो हेयर ऑल्सो यू हैव टू मेक अ वन कॉलम ऑल्सो. हेयर यू हैव टू फाइंड सिग्मा P1 upon sigma P0 into 100. तो we have 20 upon 18 into 100, फिर 15 upon 15 into 100, 150 upon 120 into 100 and 14 डिवाइड बाय 9 इंटू 100. तो लेट अस, सो अब हम सबका वैल्यूज निकाल लेंगे. तो जैसे हमने 20 डिवाइड बाय 18 इंटू 1 करोगे तो आएगा 111.11. देन 15 डिवाइड 15 इंटू 100 बिकम्स 100. 150 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 बिकम्स व्हाट, इट इज 125. and 14 divided by 9 into 100 becomes 155.55. Okay, now we have to do summation also. Sigma P1 upon P0 into 100 का जो समीशन आएगा वो कितना आएगा, 0.66. ठीक है, ये आगे समीशन. अब हम सिंपल वैल्यू पुट कर देते हैं. तो 491.66 डिवाइड बाय 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 122.91. ठीक है, तो कितना इंक्रीज आया, तो लिख देंगे नेट इंक्रीज इन प्राइस आर या फिर इज 22.91%. कितना इंक्रीज आया, 22.91% का इंक्रीमेंट आ गया. After completion of simple aggregative method and simple average of price relative method, we have another method called weightage index number. In weightage index number, we have weightage aggregative method. So today we are going to learn about weightage aggregative method. So here in the weightage aggregative method, we have total 6 formulas to solve the numericals, but in our syllabus only 3 types of formulas are coming. That is called Lesper's method, Paasche method and Fisher's method. How many methods we have? Only 3 methods we have to do: Lesper's method, Paasche method or Fisher's method, right? Because it is in your syllabus, right? Now let us start one by one for each of the formula, each of the method in the same formula, in the same numerical. Okay, so let us start today's numerical by writing the formula first. सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले देख लेते हैं, इनके मेथड कौन कौन से हैं, उनके फॉर्मूले. This is the Lesper's method. We have Paasche's method, and Fisher's method.
Okay, so these three methods we have. First is Lesper's method, second is Pesce's method, and third is Fisher's method. Out of that we are just using the formula first. सबसे पहले देख लेते हैं इनके फॉर्मूले क्या हैं. P01 equals to formula for Lesper's method. Okay, Pesce's method में again we have sigma P1 Q1 upon P0 Q1 into 100. Now let us go for the Fisher's method. Again we have the formula for Fisher's method. P01 equals to, it should be in under root. ये किस में है? अंडर रूट में. सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1. अंडर रूट के बाहर है 100. सो आई होप यू ऑल आर एबल टू सी इट, है ना. आप सब लोग इसको अच्छे से देख पा रहे हो कि तीनों मेथड्स क्या क्या हैं, है ना. अब देखिए, अभी हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला कि हमें P1 और Q0 चाहिए. क्या चाहिए? P1 और Q0. तो पहले मैं लिख लेता हूँ P1 और Q0. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला वाला पार्ट. फिर चाहिए P0 Q0, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे P0 और Q0. ये भी हो गया. फिर हमें चाहिए P1 Q1, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया P1 Q1. ये भी हो गया. फिर चाहिए P0 और Q1, तो हमने लिख लिया P0 और Q1. ठीक है, बाकी इन दोनों के फॉर्मूले को मिलाकर बना है वो वाला फॉर्मूला. ठीक है, तो आई थिंक कि बहुत सिंपल सा होने वाला है ना. P1 Q0, तो P1 40 है और Q0 8 है, तो 40 into 8 it is 320, right. Then we are using 60. P1 और Q0 10, तो 60 into 10 it becomes 600. After that we have 50 and 15, तो 50 into 15 we have 750. And after that we have P1 and Q0, 20 into 20 it becomes 400. Okay, clear है ना. Now अब हमें करना है P0 Q0 को मल्टीप्लाई. P0 ये रहा और Q0 ये रहा, तो 20 into 8 160. फिर 50 into 10 500. Then 15 into 40 it becomes 600. 20 into 20 becomes 400. P1, तो P1 this and Q1 this. 40 into 6 it's 240. Then again we have 60 into 5 it is 300. Then again we have 15 into 5 it is 750. And 25 into 20, right. And Q1 कितना है 6, तो 20 into 6 120, right. Then P0 and Q1 50 into 5 it is 250. Then Q1 is this and P0 is this, so 15 into 4 again 600. And the last is 25 into 20 it becomes 500. Is there any problem? यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है? सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, बहुत सिंपल सा मेथड है, बहुत इजी सा मेथड है. बस सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है और मल्टीप्लाई तो आप सबको पहले से आता ही है ना. है अब हमें करना है इसका समीशन. सबसे पहले निकालेंगे सिग्मा P1 और Q0. फिर दूसरा है हमारा सिग्मा P0 Q0. फिर थर्ड है हमारा सिग्मा P1
Q1 और फोर्थ है हमारा सिग्मा P0 Q1। ठीक है, तो आप टोटल कर लेते हैं इनका चारों 2 0 7 0। P1 Q0 टोटल करेंगे कितना आएगा 2070। अब P0 Q0 का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 1660 90 1790 1470। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा सबको। टोटल कैसे करना है आपको पहले से पता है, मल्टीप्लाई कैसे करना है ये भी आपको पता है, सब कुछ आपको पता है। बस अब सिंपली क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इस फॉर्मूले पे चलते हैं, सिग्मा P1 Q0। तो सिग्मा P1 Q0 हमारा कितना है 2070 अपॉन P0 Q0। तो P0 Q0 कितना है 1660 इनटू करना है हमको किससे 100 से। ऐसे ही आगे चलते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर सिग्मा P1 Q1 कितना है 1790 अपॉन P0 Q1 कितना है 1470 इनटू करना है किससे 100 से। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, अंडर रूट में P1 Q0 दैट इज वी हैव 2070 अपॉन P0 Q0 की हमारी वैल्यू कितना है 1660 मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरी वाली वैल्यू P1 Q1 कितना है हमारा 1790 और P0 Q1 कितना है 1470 और फिर रूट के बाहर 100 का मल्टीप्लाई। नाउ अब हमें 1 बाय 1 इसको सॉल्व करना होगा, तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, जल्दी से फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो 207 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे डिवाइडेड 160, तो 20700 डिवाइडेड 166 हमारा कितना आंसर आ गया 124.69। कितना आंसर आ गया 124.69। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। और इतना ही इजी है बस, और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। अब चलते हैं पेस्चे मेथड पर। अब पेस्चे मेथड को फिर से हम वही करेंगे कि 0 से 0 हमने कट कर दिया, 179 का डबल 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17900 हो जाएगा, डिवाइड बाय 147 इतना आ गया 121.77। ठीक है, अब ऐसे ही वहाँ पे चलते हैं सॉल्व। अब इस वाले मेथड में इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके हमारा कितना आंसर आ रहा है 124.69। तो हमने लिखा यहाँ पे 124.69 मल्टीप्लाई में हमारे पास 121.77, तो 121.77 बाहर 100 का मल्टीप्लाई है। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 835 मल्टीप्लाई बाय 100 बाहर है। अब पहले इसको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। रूट से बाहर निकालने के लिए हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं, वापस से इधर आ जाते हैं। अब इसको हम वापस यहाँ पे करते हैं। अब 1.51835 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 1.2322 और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे संग 100। ठीक है, क्या है हमारे संग मल्टीप्लाई में हो जाएगा 123.22। ठीक है, होप कि आपको ये बहुत इजी लगा होगा और रियली में इंडेक्स नंबर बहुत इजी है। ये इतना ही इजी मेथड था जो हमें करना था और इसके साथ हमारा इंडेक्स नंबर भी ख़त्म होता है। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही आ रहा था, राइट। तो आई थिंक कि ये सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ऐसी एक वीडियो